So good morning students, again we'll back with the next unit, sequential circuits. So application of flip-flop we'll discuss here. As we know that what is flip-flop? Flip-flop is a 1-bit memory element storage device. So अगर हम कोई flip-flop का यूज करते हैं सिर्फ 1 बिट मेमोरी को स्टोर करने के लिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि आपको 1 बिट मेमोरी स्टोर करने को मिलेगी. We have to store a data which is more bigger than 1 bit, or we can say we have to store a n bit of data. अगर n bit data को store करना है तो we need n number of flip flops. अगर आप बस 4 bit data को store करना है तो we need 4 flip flops to store that 4 bit data, and that the arrangement or the group of or combination of that 4 flip flops are known as register. So we can say the registers and counters are the application of flip flops. So here in this topic we will study what is register and what is shift register and how many types of shift registers are there. Fine. तो हम देखें रजिस्टर में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि n bit डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो we need n number of flip flops and the arrangement of that flip flop is known as registers. And data in that registers can be added or entered serially and parallelly, and data will be taken out from the register can be also serially or parallelly. मतलब हमारे जो रजिस्टर है उसमें डेटा जो हम एंटर करेंगे वो हम सीरियली भी कर सकते हैं 1 by 1 और पैरेलली भी कर सकते हैं एक साथ. सिमिलरली डेटा हमें जो एग्जिट लेना है, आउट लेना है फ्रॉम दैट रजिस्टर कैन बी आल्सो डन सीरियली और पैरेलली. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव शिफ्ट रजिस्टर्स. मतलब डेटा हमारा कैसे शिफ्ट होगा फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू लास्ट फ्लिप फ्लॉप, or we can say one flip flop to other flip flop and then back to the next flip flop and so on. So उस बेस पे हम डिस्कस करेंगे shift registers. So there are 4 types of shift registers are there. One is serial input or serial in, serial out. Shift register SR. This SR short form हमारा shift register है. इसमें हम डेटा एंटर भी सीरियली कराएंगे. इन मीन्स एंटर और आउट मीन्स एग्जिट, और एग्जिट भी सीरियली कराएंगे. तो दिस इज सीसो, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SISO, सीसो रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर. सेकेंड इज सीरियल इन, पैरेलल आउट. इस टाइप के शिफ्ट रजिस्टर में हम डेटा एंटर सीरियली कराएंगे बट एग्जिट जो होगा वो पैरेलली होगा एक साथ. दैट इज नोन एज SIPO, सीपो शिफ्ट रजिस्टर. थर्ड इज पैरेलल इन, पैरेलल आउट, और पैरेलल इन सीरियल आउट. एनीथिंग ऊपर नीचे हम कर सकते हैं. तो दैट इज नोन एज PIPO. हम डेटा एंटर भी पैरेलली कराएंगे और एग्जिट भी पैरेलली कराएंगे. एंड द लास्ट टाइप ऑफ रजिस्टर इज पैरेलल इन एंड सीरियल आउट. डेटा हमारा एंटर पैरेलली होगा बट डेटा हमारा आउट और एग्जिट में सीरियली फॉर्म होगा. दैट इज 1 by 1. So this is the 4 type of shift register we will going to study in this lecture. So we will discuss 1 by 1 about all the varieties. So first we will discuss serial and serial out shift register, and we will discuss here the 4-bit data to be stored. 4-bit डेटा अगर हम मान के चल रहे हैं स्टोर करने के लिए तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे. वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स टू बी. तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स को हम लेते हैं. वी टेक 4 ब्लॉक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. फाइन. ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन क्लॉक पल्सेस. This is a clock connected to all the flip flops. This is flip flop 0, flip flop 1, flip flop 2, and flip flop 3. So we have 4 flip flops, and we can take any variety of flip flop in that. Either you can take D, T, JK, SR or RS. So I'll take the D flip flop. So D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2 and D3, Q3. These are the inputs and outputs of the flip flops. D is the input and Q is the output.
अब यहाँ पर क्या होगा, द एक्सटर्नल इनपुट D in will be connected to the first flip flop input, that is D0, and the Q0 of first flip flop is connected to the D1 of second flip flop, and Q1 of the second flip flop is connected to the D3 or D2 of third flip flop, and similarly Q2 of the third flip flop is connected to the D3 of the fourth flip flop. तो हम इस तरीके से हम देख रहे हैं एक कैस्केडिंग की तरह कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं सीरियली. ओके, सो सीरीज में कनेक्टेड है. अब हम देखें इनिशियली इसका ऑपरेशन. इनिशियली जो हमारे चारों फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ये हमारे चार फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है. एंड इनिशियली दे आर एट रीसेट कंडीशन. रीसेट मतलब सभी 0 0 पे हैं इनिशियली. अब हमें डेटा को स्टोर करना है ना. फ्लिप फ्लॉप का मतलब है डेटा को स्टोर करना. अब यहाँ पर हमारा सिंगल बिट डेटा नहीं है, 4 बिट का डेटा, इसलिए हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है. अब हमारे पास 4 बिट का कोई डेटा है. सपोज वी हैव डेटा टू बी स्टोर्ड इज 1111. 1111 को स्टोर करना है मुझे इस पूरे रजिस्टर में, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप में. तो वो एक साथ तो नहीं होगा, सीरियली होगा, 1 बाय 1, जैसे हमने नाम दिया हुआ सीरियल इन सीरियल आउट. तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप Q0, Q1, Q2 एंड Q3 आर 0 0 0 0. अब क्या करना है, जो D डेटा है हमारा 1111, उसका जो LSB है, दिस इज माय LSB एंड दिस इज माय MSB. तो हमारे डेटा का LSB इज गिवन टू द D in, दैट इज 1. इस D in पे हमने 1 दे दिया, यहां से हमारा 1 खत्म हो गया. अब जैसे ही अब हमारे D in पे क्या है, 1 है, मतलब D in पे 1 है, मतलब D0 पे 1 है, क्योंकि D in हमारे D0 से कनेक्टेड है. अब जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, वी कैन से फर्स्ट क्लॉक पल्स, शॉर्ट में मैं सीपी लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. हम देखते हैं अलग अलग क्लॉक पल्स अप्लाई करने से हमारा डेटा क्या होगा. तो जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, अभी इनिशियली मेरा डेटा जो है 0 0 0 0 पे, मतलब ये हमारा Q0, Q1 है, Q2 है, Q3 है. जैसे ही मैंने अब इनिशियली क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले हमने जो LSB हमारा डेटा का था वो हमने D in को दे दिया, D in को दे दिया, मतलब D0 को दे दिया. जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, चूंकि सभी क्लॉक पल्स एक साथ फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड है, तो अभी इनिशियली सभी 0 है, आउटपुट इज 0, दैट इज सीरियल आउट. तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ बनाया लेने के पहले, क्लॉक पल्स देने के पहले, जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो सबने अपना डेटा ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया. मतलब इसने आपको 1 दे दिया, इसने 0 को 0 दे दिया, इसने 0 को 0 दे दिया, इसने 0 को 0 दे दिया. दैट मीन्स फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद ये जो इनपुट 1 था वो यहाँ पर आ गया, और आपका ये डेटा यहाँ से हट गया, इसका 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया. तो ऑलरेडी इट इज 0, तो हमने चेंज नहीं किया. ये 0 इसका था, तो इसने इसको दिया 0, ऑलरेडी इट इज 0, वी आर नॉट चेंजिंग इट. And again जो 0 था इसने 0 कर दिया. That means our condition will be now 1 0 0 0 after applying first clock pulse. अब जो हमारा LSB ये कंप्लीट हो चुका था हमारा. अब हमारा ये LSB बचा हुआ, ये LSB हमने D को दे दिया बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट क्लॉक पल्स. अब जैसे मैंने सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो ये शिफ्ट कर देगा डेटा, मतलब ये ऑलरेडी जब 1, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा. ये जब 1 अंदर गया, इधर आया, ये 1 जब इधर शिफ्ट हुआ, राइट साइड इधर आया, इसका जो 0 डेटा था इट्स शिफ्टेड टू हियर एंड 0 डेटा इज अगेन शिफ्टेड टू हियर. नाउ द आउटपुट विल बी 1 1 0 0. दिस इज द कंडीशन आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स. नाउ अब हमारा ये वाला LSB भी कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल प्रोवाइड दिस 1 टू दिस D. अब जैसे मैंने थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, 1 हमारा इधर आ जाएगा, ये 1 हमारा इधर आ जाएगा, ये 1 हमारा इधर आ जाएगा, लाइक दिस, and this data will be moved inside, and इधर जो 0 था ये आपके इधर आ जाएगा. Now the condition will be 1 1 1 0. and similarly हमारा ये वाला D जो था हमारा डेटा खत्म हो गया. अब D in पे हमारा फिर हमने 1 दे दिया ये. अब हमने जैसे फोर्थ क्लॉक पर अप्लाई की, ये 1 हमारा इधर आ गया, इधर, ये 1 हमारा इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर पहुंच गया. So like this all flip flop are now set it to the data which we required, or we can say all the flip flop or outputs are in set condition.
तो हमारा जो डेटा हम स्टोर कराना चाहते थे हमारे फ्लिप फ्लॉप में और रजिस्टर में 1111 आफ्टर 4 क्लॉक पल्स इट इज स्टोर्ड। तो हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास n बिट डेटा है स्टोर करने के लिए तो n बिट ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और n क्लॉक पल्स लगेंगे। और बस 8 बिट का डेटा को स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप सीरियली कनेक्टेड होंगे और 8 क्लॉक पल्स लगेंगी टू स्टोर योर फाइनल डेटा टू द ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। So this is the first type of flip-flop, that is serial in, serial out shift register. Now we'll discuss the next type of shift register, that is serial in parallel out. Fine. तो इसको हम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनेगा, थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन है तो इसलिए मैं रब नहीं कर रहा हूं, इसी में मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं डायग्राम। So this is the diagram for serial and parallel. Okay. So D is again connected to D0, Q0 is connected to D1, Q1 is connected to D2, Q2 is connected to D3 and Q3 is the final serial output. और we can see serial output वर्ड यहाँ से हम अलग कर देते हैं क्योंकि डेटा हम पैरेलली दे रहे हैं एक साथ। यहाँ भी क्या होगा, डेटा हमारा लोड हो रहा है सीरियली और आउट लेंगे एग्जिट लेंगे पैरेलली। तो लोडिंग का प्रोसेस सेम है जैसे हमने सीरियल में किया था, हर बार में एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। इनिशियली हमारा डेटा जो है यहाँ भी initially 7 flip flops Q0, Q1, Q2 and Q3 are on the reset condition 0 0 0 0। ठीक है, और मुझे जो डेटा स्टोर कराना है, डेटा टू बी स्टोर्ड इज अगेन 1 1 1 1। ठीक है, तो सीरियली हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम फिर से वही प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनिशियली हमारा ये एलएसबी हमारा डीन पे पहुंचेगा, ये हमारा एलएसबी हमारे डीन पे पहुंचा तो अगेन हमारा सेम प्रोसेस, जैसे हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 1 0 0 0 पिछले केस की तरह। अभी जब हम सीरियली इन करेंगे डेटा, इस केस में सीरियल इन पैरेलल आउट, तो आउटपुट ऑपरेशन जो है वो डिसेबल रहेगा, वी विल नॉट सी द आउटपुट। जब हमारा डेटा पूरा लोड हो जाए हमारे फ्लिप फ्लॉप पे और रजिस्टर पे, तब हम डेटा आउटपुट को एनेबल करेंगे। फाइन। तो अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे मैंने नेक्स्ट क्लॉक पर अप्लाई किया तो हमारा इधर पे क्या मिल रहा है मुझे, दैट इज 0 1 1 0 0। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1 1 1 0, देन 1 1 1 1। ये हमारा डेटा लोड हो गया हमारे पूरे रजिस्टर पे। अब डेटा लोड होने के बाद हमारा जो इनपुट वाला डेटा था, लोडिंग वाला, लोडिंग विल बी डिसेबल्ड, नाउ आउटपुट विल बी एनेबल्ड। अब आउटपुट एनेबल्ड होगा, जैसे आपका आउटपुट एनेबल्ड होगा यू विल सी ऑल द आउटपुट्स पैरेलली एट ए टाइम। तो अब आउटपुट में फाइनल स्टेट का आपको क्या दिख रहा है, पर 1 है 1 है 1 है 1 है। जैसे मैंने आउटपुट को एनेबल किया, ये 1 हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये 1 हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये 1 हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और ये 1 हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। मतलब चारों आउटपुट्स we can say Q0, Q1, Q2, Q3 are seen parallelly. We are not seeing 1 by 1 by 1 by 1. So this is the serial in and parallel out shift register. Slight modification in serial in serial out. यहाँ भी अगर हम बात करें डेटा को पूरा लोड करने के लिए जितने क्लॉक पल्स सीरियल इन सीरियल आउट में लग रहे थे उतने क्लॉक पल्स सीरियल इन पैरेलल आउट में भी लग रहा है। दैट मीन्स क्लॉक पल्स में कोई कमी नहीं है। फाइन। नेक्स्ट टाइप का हम शिफ्ट रजिस्टर देखते हैं, पैरेलल एंड पैरेलल आउट। मॉडिफिकेशन में डायग्राम में कर दे रहा हूं। दिस इज क्लॉक,
Fine. So this is the diagram or blocks of parallel in parallel out shift register. इसमें हम देखें कोई भी फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, जैसे पिछले केस में कनेक्टेड थे, इसका आउटपुट इसके साथ, इसका आउटपुट इसके साथ, इसका आउटपुट इसके साथ, all are connected independently, but only clock pulse is to all the flip flops are connected commonly. Now अब हमारे पास जो डेटा है that is B0 B1 B2 B3, ये हमारे इस रजिस्टर में लोड कराना है. B1 B0 B1 B2 B3 कुछ भी हो सकता है. It can be 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 anything, any combination it can be there. तो हम इसके ऑपरेशन को समझते हैं. इट्स ऑपरेशन इज वेरी इजी और वी कैन से इट्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अब क्या हो रहा है कि हमारे पास B0 B1 B2 B3 के पास अपना अपना डेटा है. सपोज मैं मान लूं B0 के पास ही 1 है, B1 के पास ही 1 है, B2 के पास ही 1 है एंड B3 के पास ही 1 है अपना डेटा. तो सभी के पास अपना अपना डेटा है. इनिशियली सभी Q0, Q1, Q2 and Q3 are in reset condition, that is 0 0 0 0. इनिशियली सभी 0 0 0 0 पे है. ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0. नाउ अब जैसे मैंने यहां पर 1 दिया, मतलब यहां पर 1 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 1 आया, यहां पर 1 आया क्लॉक पल्स देने के पहले, और जैसे मैंने क्लॉक पल्स दिया, फर्स्ट क्लॉक पल्स दूंगा अगर मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे दूंगा तो सभी फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्टेड है क्लॉक पल्स, तो सब इनपुट पे जो जो डेटा है वो आउटपुट पे आ जाएगा. तो 1 का जो डेटा था वो यहां आ गया, ये 1 जो डेटा था वो यहां आ गया, ये 1 जो डेटा था वो यहां आ गया, और ये 1 जो डेटा था वो यहां आ गया. मतलब फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करते ही चारों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ आपका जो डेटा था 1 1 1 1 इज स्टोर्ड. तो दिस इज द मैजिक ऑफ parallel in parallel out. Instead of using n number of clock pulse, you require only one clock to store any number of flip or data, any bit of data. So this is parallel in parallel out. हम देख रहे हैं हमने डेटा को लोड भी पैरेलली कराया एक साथ और एग्जिट भी हम पैरेलली देख रहे हैं. मतलब यहां पर हम देखें 1 1 1 and 1. So this is parallel in parallel out shift register. I hope you understand this. Now we'll see the last type of shift register and that is quite interesting. सबसे स्पेशल और सबसे थोड़ा सा जिसमें लॉजिक एक्स्ट्रा लगेगा आपको वो है आपका पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. तो उसको हम देखते हैं लास्ट में. पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. इसमें जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बनेगा उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लॉजिक का भी यूज होगा. दैट यू विल सी इन दिस ब्लॉक डायग्राम. इसलिए मैंने इसको रब करके नए तरीके से बना रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कहीं भी. और फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन क्लॉक पल्स जैसा हम सब में करते आए अभी तक. दिस इज अगेन फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3. दिस इज अगेन D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2 and D3, Q3. इसमें हम देखें हमारा डेटा पैरेलली एंटर करेगा और एग्जिट करेगा सीरियली. तो हमारे पास कोई डेटा है दैट इज B0, B1, B2 एंड B3. B0 जो डेटा है वो डायरेक्टली D0 पर दे दें. अब B1, B2, B3 जो डेटा है वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, एक कॉम्बिनेशन लॉजिक के साथ जाएगा जैसा मैंने आपको बताया. विल टेक हियर दैट लॉजिक, विल टेक हियर
दिस लाइन इनपुट इज नोन एज शिफ्ट स्लैश लोड बार। ये जो इनपुट है हमारा शिफ्ट स्लैश लोड बार, उसको हम समझते हैं क्या है। एंड वी विल यूज हियर द कॉम्बिनेशन लॉजिक। We take here two AND gates and the outputs of that AND gate will be given to the OR gate like this, and the output of that OR gate will be given to D1. Similarly यहाँ भी हम दो AND gate यूज करेंगे, उन AND gate का आउटपुट को हम देंगे OR gate के इनपुट्स को, और OR gate का आउटपुट हमारा जो रहेगा D2 पे जाएगा। Similarly same we will use here also। फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे हमें यूज नहीं करना है, बाकी सभी में करना है। पहले हम इसके सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऑपरेशन को समझेंगे। विल गिव हियर द गेट नंबर 1 2 3 4 5 6। हमारे सहूलियत के लिए हमने नंबर दे दिए। अब गेट नंबर 1 से एक इनपुट हमारा ये कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट, और दूसरा इनपुट हमारा जो हमारा Q0 से है वो कनेक्ट रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी एक इनपुट हमारा Q3 पे कनेक्ट रहेगा, मतलब यहाँ से जाएगा, और एक हमारा नीचे वाली लाइन से कनेक्ट रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी हमारा एक इनपुट हमारा Q2 से जाएगा और एक हमारा नीचे वाली लाइन से कनेक्ट रहेगा। फाइन। अब गेट नंबर 2 के दो इनपुट जो है, एक इनपुट हमारा ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड रहेगा और एक हमारा डेटा से कनेक्टेड रहेगा जो हमारा D1। गेट नंबर 4 पे एक इनपुट हमारा ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड रहेगा और एक हमारा B2 डेटा से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली फॉर दिस एक इनपुट हमारा 6 का ऊपर से कनेक्टेड रहेगा ऊपर वाली लाइन से, और एक हमारा B3 से कनेक्टेड रहेगा। सो दिस इज आवर सर्किट, और वी कैन से द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब हम इसके ऑपरेशन को समझते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम देखें। तो अब हमारे पास यहाँ दो मोड होंगे, वी हैव टू केसेस। मोड 1 में क्या होगा, आपका जो शिफ्ट स्लैश लोड लाइन जो है वो जो है लो है। लो है मतलब 0 है। दिस इज फर्स्ट मोड, ओके, ऑलरेडी डन। शिफ्ट लोड लाइन हमारी लो है मतलब 0 है। अगर ये लाइन लो है मतलब यहाँ 0 इनपुट दे रहा है। अगर हमारा 0 इनपुट दे रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नॉट गेट कनेक्टेड है, और नीचे वाली जो लाइन है वो 0 है। ठीक है, तो 0 है मतलब नीचे वाली लाइन से कनेक्टेड जितने भी गेट हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एंड गेट का कोई एक इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट आपके एंड गेट का 0 आता है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं गेट नंबर 1, गेट नंबर 3 एंड गेट नंबर 5 is connected to the lower line। तो हमारा we can say that gate 2, 4, 6 is enabled and gate 1, 3 and 5 is disabled or deactivated। अगर हमारे गेट 1, 3 और 5 नहीं है, मैं एक किसी में आपको रब करके समझा दे रहा हूं, अगर ये है ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये पूरा गेट हट जाएगा। ठीक है, अगर ये गेट हट गया, सपोज अगर ये गेट हट गया तो इस और गेट का काम भी खत्म हो जाएगा। और गेट क्या कर रहा है, दो इनपुट्स को और ऐड कर रहा है। जब हमारे पास एक इनपुट है ही नहीं तो और गेट का काम भी खत्म हो गया, लाइक दिस। अब हम देखें हमारे इस गेट नंबर 2 का आउटपुट क्या होगा। अब ये वाली लाइन पूरी 1 है, ये पूरी लाइन ऊपर वाली 1 है, तो गेट नंबर 2 क्या होगा, 1 into B1। 1 into B1 विल बी B1, मतलब ये एंड गेट भी हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा डायरेक्टली, वी गेट डायरेक्टली हियर B1। यहां पर क्या मिलेगा मुझे, B1। सेम प्रोसेस अगर मैं यहां पूरा रब करूं, सेम प्रोसेस, यहां पर क्या मिलेगा मुझे, B2 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा मुझे, B3 मिलेगा। तो मतलब हमने क्या किया कि चारों इनपुट्स जो थे हमारे, और यहां पर ऑलरेडी हमारा B0 है जो कि हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो चारों इनपुट्स जो थे हमारे B0, B1, B2, B3, जैसे हमने शिफ्ट लोड लाइन को लो किया और 0 किया, हमारे गेट नंबर 2, 4 एंड 6 आर एनेबल्ड, गेट नंबर 1, 3, 5 आर डिसेबल्ड, और गेट नंबर 1, 3, 5 जैसे डिसेबल हुए
हमारे चारों डेटा जो है हमारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स पे लोड हो गए। दिस इज द पैरेलल इन। इस तरीके से डेटा हमारा पैरेलली इन हो रहा है। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट मोड है। नाउ विल सी द सेकंड मोड, मोड नंबर सेकंड। इसमें हम लिख सकते हैं पैरेलली। फर्स्ट मोड कंप्लीट कर देता हूं। डेटा B1, B2, B3 and B4 are loaded to its respective flip flops। अपने हमने रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप पे डेटा जो हमारा है B1, B2 और B3, सॉरी B0, B1, B2 and B3 is loaded। ये हमारा फर्स्ट मोड हुआ। नाउ विल डिस्कस द सेकंड मोड। मोड सेकंड में क्या होगा? शिफ्ट लोड लाइन इज 1 और वी कैन से इट्स हाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एज इट इज हमारा जो सर्किट था वो बना लें। यहां पर हमारा एक एंड गेट था, उसके आउटपुट को हम और गेट पे दे रहे थे 1, 2 एंड दिस इज गिवन हियर। एंड इसका जो आउटपुट है आपका, एक ये जाएगा, एक आपका नीचे गेट से कनेक्टेड है, ये आपका एक ऊपर वाले लाइन से कनेक्टेड है, एक आपका इससे कनेक्टेड है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इट्स B0, B1, B2 एंड B3 इन मोड 1 इज लोडेड ऑन अ फ्लिप फ्लॉप। अब जैसे ही शिफ्ट लोड लाइन को मैं बंद कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा? 0 हो जाएगा नॉट गेट के कारण, और नीचे वाली लाइन जो है 1 है। अब ऊपर वाली लाइन 0 है, ऊपर वाली लाइन 0 मतलब ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड जो भी गेट्स है वो डिसेबल हो जाएंगे, और नीचे वाली लाइन से जितने भी गेट है वो एनेबल्ड हो जाएंगे। ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड गेट है आपके 2, 4, 6, तो वी कैन से गेट 2, 4 and 6 are disabled and gate 1, 3 and 5 are enabled। ठीक है, तो गेट 2, 4, 6 अगर डिसेबल्ड हो चुके हैं, अगेन मैं किसी एक को बना के दिखा दे रहा हूं पहले वाले में। तो गेट नंबर 2 इज नॉट देयर, गेट नंबर 2 नहीं रहेगा, मतलब ये है ही नहीं, डेटा ऑलरेडी वाला लोड हो चुका है। अब अगर हमारा और गेट का सिर्फ एक ही इनपुट है तो और गेट का काम भी खत्म हो गया, मतलब ये डायरेक्टली से कनेक्टेड है लाइक दिस। अब इस एंड गेट की वैल्यू देखिए, गेट नंबर 1 की, एक हमारा ये है लाइन 1 वाली पूरी लाइन, 1 into Q0 इज Q0, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। तो डायरेक्टली Q0 हमारा इससे कनेक्टेड है लाइक दिस। ये हमारा फर्स्ट गेट के लिए हमने किया, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए किया। सिमिलरली सेम ऑपरेशन हम सभी पे करें, मतलब ये भी हमारा हट जाएगा सब कुछ, एंड Q2 विल कनेक्टेड टू हियर, दिस इज B2। सिमिलरली ये भी पूरा हट जाएगा एंड इट इज कनेक्टेड टू अगेन कनेक्टेड टू दिस B3 एंड दिस आउटपुट। तो हम देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट ले रहे हैं वो सीरियली ले रहे हैं। सीरियली का मतलब क्या होता है? एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में कनेक्टेड, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में कनेक्टेड, और तीसरे का आउटपुट चौथे के इनपुट में कनेक्टेड। तो हम देख रहे हैं इस फर्स्ट का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर कनेक्टेड एंड देन वी आर मूविंग ऑन। तो लाइक दिस वी कैन सी द डेटा। तो डेटा हमें 1 by 1 B0, B1, B2 एंड B3 मिल जाएगा जैसे ही मैं क्लॉक पर सप्लाई करूंगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं वी हैड एंटर्ड डेटा पैरेलली व्हेन वी हैड टेकन मोड नंबर 1 एंड वी हैव टेकन डेटा सीरियली व्हेन वी हैव यूज्ड द मोड नंबर 2। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो गेट नंबर 2, 4, 6 आर डिसेबल्ड एंड गेट नंबर 1, 3, 5 आर enabled and the data is taken in serial form। सीरियल फॉर्म में हमने डेटा लिया। तो दिस इज अबाउट पैरेलल एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो हमने चारों प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर देख लिए।
शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं? What is CISO, serial in serial out shift register? What is CIPO, serial in parallel out shift register? What is PIPO, parallel in parallel out shift register? And the last one is parallel in serial out shift register. So this is all about the shift registers and registers. We will discuss about the counters in the next class, that is synchronous and asynchronous counters. So इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, आप बिल्कुल मुझसे डाउट क्लियरिंग सेशन में इसको क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर मतलब खत्म कर सकते हैं। और तो इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो अच्छे से देखें। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।